ठीक है. Now I'm sharing my screen. Please tell me whether it is visible to you. Okay. Now can you see? You have to say, right? I can't see your comments. Is it visible? Yes. Okay. So sitting asana, we'll do it while our body at sitting posture. First, you have to sit comfortably, easily on your mat, and then we'll start all the asanas. So the first thing, which step, or you can say the first position of any sitting asana is whether it's any comfortable posture like Sukhasana or Padmasana or sitting Dandasana. All right. So all the postures, all the asanas we start. The initial initial stage is either simple, easy sitting posture or Dandasana, sitting Dandasana. All right. So first asana we'll discuss here is Veerasana. Veerasana means hero's posture. Now Veer means hero or a courageous man or valiant. So this asana displays some heroic qualities of a warrior. So hence the name is given to Veerasana. Now you have to sit on the ground, folding your knees and bend your right knee and stretch your left leg, backward, right? Or you can say you sit in Vajrasana and then you open up your one leg so that your knee will be at facing upstairs. So that way also you can start. And then you have to, clench the fist with your thumb tucked and stretch the right arm forward in front of your chest and bend left arm back. Now stretch trunk with backward. Your spine should be straight, neck should be straight, and with full strength, and keep your the other leg straight so that the knee will be facing upside. Now you have to keep your both eyes open without blinking, or you can stare at one point, or you can make Nasagra Mudra, or Shambhavi Mudra, or you can look at your eyebrow center. So it basically the benefits are generate strength, courage, fortitude, and power, and it removes your letharginess. No, letharginess will come on your legs first, arms, your neck, your spine get relaxed. So in this posture, your both legs are in active mode and your hands are also very at attentive position. You have to hold your one knee which is on the ground with your palms with straight elbow, and the other knee you have to place your other elbow. All right, and your palms will be holding your chin. So your neck portion, your spine, all should be erect. So that way, it reduces the waist and makes the chest open. And a person prone to excessive sleep must practice this asana. So this is a very good आसन. तो इस आसन में आपको क्या करना है? वीर आसन का मतलब है कि वीरों वीर मतलब कि साहस है ना, करेज, साहस. तो उसको जनरेट करता है ये आसन. कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको एक्टिवनेस देते हैं, आपका जो आलस है वो दूर भगाते हैं.
तो इस पोस्चर में आपको ठीक से या तो आप पहले वज्रासन में बैठ जाइए या फिर आप सिटिंग दंडासन में बैठिए। उसके बाद में आप एक लेग को फोल्ड करके और जो आपका हील है उस पे रिस्पेक्टिव हिप को रेस्ट करेंगे। उसका जो कूल्हा है आपका वो उस हील पे आ जाएगा और जो दूसरा लेग है उसको आपको सामने की तरफ बेंड करना है ताकि जो नी है वो ऊपर की तरफ फेस करे। अब इसमें जो नी आपने बेंड किया है, जो लेग बेंड किया है, वो वाला हाथ यानी कि आपने यदि लेफ्ट लेग को बेंड किया है तो लेफ्ट पाम जो है वो लेफ्ट नी को होल्ड करेगा, मतलब फर्मली होल्ड करना है, स्ट्रेच करना है एल्बो को। और जो दूसरा लेग है जिसमें कि आपने नी को अप रखा है उस वाला यानी कि वो राइट पोर्शन हो गया, राइट लेग अप है आपका, तो जो राइट आर्म है उसकी जो एल्बो है उसको से टच करना है आपके नी से और अपने चिन को राइट पाम पे रेस्ट करना है, देना है। तो इसमें जो पोस्चर आपको दिख रहा है ये इजी आरामदायक पोस्चर नहीं है, ये एक तरह से अटेंटिव पोस्चर है, ठीक है आपको। और जो आपकी आईज है वो सीधा एक पॉइंट पे देखेंगी, तो इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो भी थोड़ा इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। लेग्स भी आपके डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर पे हैं तो सर्कुलेशन भी उसी तरह से इसमें होगा। और हैंड्स भी जो हैं आपके, जो आर्म्स हैं वो भी आपको रेस्ट मोड में लग रहे हैं लेकिन ये पूरा स्ट्रेच देता है आपके ना। एक में एल्बो इफेक्ट हो रहा है, एक में आपका पूरा आर्म जो है शोल्डर से लेके पाम तक ये सर्कुलेशन इसमें जो है वो बढ़ता है। तो इस ये जो हो गया आपका वीरासन हो गया। नाउ सेकेंड इज पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन भी जो है वो बैठ कर के हम करते हैं और इसमें भी जो इनिशियल पोस्चर जो होगा आपका वो होगा सिटिंग दंडासन, ठीक है। पहले आपको सिटिंग दंडासन में बैठना है और फिर उसके बाद में आप इस पोस्चर को करेंगे। Now Paschimottanasana is a posterior stretch posture. All right, Paschim means your posterior and Uttan means you have to stretch out. So in this asana, the back side of the spinal stretched, okay? Hence it is called the Paschimottanasana, stretching both the legs straight on the ground and holding the big toes with your hands. One should stay in this is the final posture, okay? Don't take it like at the first few practices you will achieve this final posture. It may be somewhat difficult because it depends on individual's capability. So this is the picture is of final posture, okay? So your one should stay in this position with this forehead will be placed on knees, or more correctly it is your head will be somewhat more above your knee. This is if your spine is perfectly stretched. So, and this is the final posture. So initially what you have to do, you have to sit on the ground stretching your both legs in front and place your hands by the side with palms resting on the ground. This is called the Dandasana, sitting Dandasana. And first you have to, just relax your back first before starting it, and back muscles, and you have to raise your both arms up and inhale completely. And while exhaling, you have to bend your body forward as far as possible. जितना आप जा सकें उतना आपने जाना है, and maintain this posture for as long as you feel comfortable. And while exhaling, two things you have to remember. You have to tuck your tummy in while you bend forward, and secondly you have to exhale while bending forward. All right, and to come back you have to loosen your hand and place them where they are comfortable. It would be easier if they are
put on your thigh, and then you have to practice this asana daily and keep trying, bending forward little more till you are able to hold your big toes of your leg, and with 4 fingers of your respective hand, and navel should touch your thighs. So this is the final posture, and bring the chest and head close to your legs as much as possible. And then at the final posture, your elbow will touch the side of your leg on the ground. And you have to maintain this posture as per your capacity. Hold the posture, but don't hold your breath until you become, much perfect. Then only you can hold the breath. Otherwise, keep breathing, normal breathing. All right. You have to just keep in mind while going to that final posture, what is the breathing procedure? If you are bending forward, then you have to tuck your tummy in and exhale, and then go to the final posture. All right. First, you have to inhale completely and then slowly exhale, and then achieve this the posture. And you have to come back by raising your chest, your arms up and head up from the leg, and then रिलैक्स योरसेल्फ. ऑलराइट. तो पश्चिम उत्तान आसन को पश्चिम उत्तान आसन क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिम का मतलब है आपका जो बैक पोर्शन है, जो पीछे वाला हिस्सा है, जिसमें कि आपका स्पाइनल आता है, आपका थोड़ा सा शोल्डर का रीजन आता है, जो बैक मसल्स हैं स्पाइन के आसपास, है ना, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके आसपास जो भी मसल्स हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, थोड़ा सा पेल्विक रीजन जो आपका जॉइंट है वहां से, वो पूरी तरह से स्ट्रेच होता है. स्ट्रेच आपके लेग मसल्स भी होते हैं, लेकिन जो पूरा इफेक्ट जो पड़ता है ज्यादा, वो आपके बैक साइड को एक परफेक्ट स्ट्रेच मिलता है, पूरा सीधा हो जाती है आपकी स्पाइन इस आसन से. इसीलिए इसको पश्चिम उत्तान, उत्तान का मतलब है खींचना, है ना, तो उसको सीधा करना, थोड़ा सा फोर्स लगा के, थोड़ा सा प्रेशर लगा के. तो इसलिए क्योंकि आप खींचेंगे तो थोड़ा सा पुल तो आपको करना पड़ेगा. राइट. तो इसलिए इसका नाम जो है वो पश्चिम उत्तानासन है. सिटिंग पोस्चर्स हम जो है सिटिंग दंडासन से करते हैं, या सुखासन से करते हैं, कुछ वज्रासन से भी हम स्टार्ट करते हैं. तो पश्चिम उत्तानासन में दंडासन है. तो दंडासन मतलब कि आपको अटेंटिव रहना है, नेक एंड बैक आपका स्ट्रेट रहेगा, दोनों लेग्स आपके सामने की तरफ खिंचे हुए सीधे रहेंगे, और पाम्स जो हैं आपके साइड में रहेंगे. थोड़ी सी एल्बो बेंड रहती है, क्योंकि यदि आप एल्बो को, पूरे आर्म को सीधा करोगे, शोल्डर आप ऊपर हो जाता है, तो वो नहीं करना है. शोल्डर को रिलैक्स रखना है, और दोनों पाम्स को साइड ऑफ द बॉडी नियर योर हिप्स, वहां पर अपने कूल्हे के पास में आपको वो रखना है. तो ये हो गया आपका दंडा. खुश है तो दोनों हाथों को सीधा ऊपर लेके जाना है, अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है. पहले स्ट्रेच करना है को, जो ट्रंक पोर्शन है आपका उसको पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे. अच्छी तरह से इनहेल करेंगे, सांसों को अंदर लेंगे, और एक्सेल करते हुए टमी को अंदर खींचते हुए धीरे 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 आपको फॉरवर्ड बेंड करना है. जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक आपको जाना है, और उस पोस्चर को थोड़ा नहीं करना है. प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपनी बॉडी को आप थोड़ा सा पुश करेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो बेंडिंग है वो इम्प्रूव होगी, और धीरे धीरे आप नीचे आएंगे. फाइनल पोस्चर में आपको अपने टोज को टच अच्छी तरह से होल्ड करना है, अपने अंगूठे को पकड़ लेना है. और जब आप अंगूठे पकड़ लेते हो, आपका हेड जो है वो आपके नीज पे या फिर शिन बोन पे टच होने लग जाता है, आपका जो एब्डोमिनल रीजन है वो आपके थाइस से टच होता है, तो उस केस में आपकी जो एल्बो है वो ग्राउंड को टच करती है. तो ये आपका फाइनल पोस्चर है. इसमें आपको होल्ड करना है थोड़ी देर, जहां तक भी आप जा सकते हैं वहां पे आप थोड़ी देर होल्ड करिए. उसी से स्ट्रेचिंग जो है वो प्रॉपर होती है, क्योंकि
मेजर मसल्स के अलावा जो मसल्स सपोर्टिंग मसल्स हैं उसके लिए, जो वो पूरा एक ऑर्गन बनाती हैं या एक पार्ट बनाती हैं, तो जब आप होल्ड करते हैं तो वो छोटी छोटी मसल्स को भी एक स्ट्रेच मिलता है। ठीक है, वो उसको भी एक तरह से उसका भी सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना आपसे हो सके उतना आपको थोड़ा सा पोस्चर को होल्ड करना है और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में करना है, और फिर धीरे धीरे आप सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। पूरी तरह से स्पाइन को लूज नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए ही सीधा सीधा वापस आइए। यदि आपने स्पाइन को लूज छोड़ दिया तो बैक में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप खुद परफॉर्म करते हो या करवाते हो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार कर रहे हैं उनको हर चीज आप बताएंगे तो वो परफेक्टली उस आसन को करेंगे, और जो इंजरीज होने के चांसेस हैं या किसी को ट्विस्ट आ जाता है ना, स्ट्रेन आ जाता है या कोई मसल खिंच जाती है, तो उससे फायदा होने की जगह उसको तकलीफ हो जाती है। तो ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर दिस आसन? It strengthens your spine, and then at the same time your frontal portion, matlab your abdominal region, all right? Abdominal muscles get strengthened. It is helpful in removing constipation. Means your digestive system get affected, if you are having you are obese, or sometimes of weakness in your abdominal region or lower abdominal region. So that way it is very much beneficial, and it also reduces the possibility of sciatica. Sciatica जो पेन है, it starts from your pelvic region, and it covers whole your leg, side of your leg to your toe. If you do regularly this type of practices, so you'll get a very good stretch to all the muscles, all the nerves. So they become more flexible. So the problems related to muscle or nerve, it will be reduced. Now, those practicing it, for more than 3 minutes uh, should perform. If you practice Udyan Bandh in the middle of the asan, then it is very much, again, it is much more, it gives more benefits. तो इसके जो फायदे हैं वो ये हैं कि आपके स्पाइन को तो अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी उसकी आ रही है। नर्व्स जो हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से पास होती हैं, जो बीच बीच में एक तरह से उनके जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। इसके साथ साथ एब्डोमिनल रीजन जो है वो मसल्स भी स्ट्रेंथन होती हैं, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होता है। तो यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना, या ओबेसिटी है, ओबेसिटी भी कहाँ आती है? सबसे पहले आपके एब्डोमिनल रीजन, वेस्ट रीजन में आती है। तो यदि आप स्ट्रेच करोगे, वो मसल पे काम करोगे, तो धीरे धीरे जो फैट डिपोजिशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, और साइटिका के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। और जो प्रैक्टिशनर जो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं इसको, 1 मिनट 2 मिनट तक भी इस पोस्चर को होल्ड करते हैं, तो इसके साथ उनको उद्यान बंद भी यदि वो लगा लें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए। क्या लगाना है मैम खत्म करने के बाद? मैम क्या बोला आपने? उद्यान उद्यान है क्या बोला? बंद, उद्यान बंद, बंद है। उद्यान बंद। हाँ हाँ। नाउ अभी हमने फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग की है, तो हम अब बैकवर्ड करेंगे। तो बैकवर्ड में सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन जो है ये भी बहुत अच्छा। यस, पश्चिम उत्तानासन करने के बाद लगाना था। मैं समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप? उद्यान बंद कब लगाना? उद्यान बंद उसका जब आपने फाइनल पोस्चर पे आप पहुंच गए, आप यदि उसको 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, यदि उस पोस्चर को,
इससे क्रिश्चियन बनेगा, ऐसे मतलब ऐसे बन सकते हैं? सॉरी, इस ऐसे क्रिश्चियन बन सकता है क्या मैम? इससे पश्चिम उत्तानासन में उद्यान बंद लगा हुआ है। नहीं देखो, ये एक प्रैक्टिस है, यदि आप कर सकते हो तो ठीक है, ठीक है। और ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि पूरा जो आपका पेट है ना, एब्डोमिनल जो रीजन है वो आपके थाइस से टच होता है, ठीक है, पूरा स्ट्रेच होता है। तो यदि आप उसको पूरी तरह से, क्योंकि आपको एब्डोमिनल मसल को तो अंदर खींचना ही है जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, तो ये तो है ही है कि आपको उसको पुल इन करना है ना, अंदर खींचना है जब आप फॉरवर्ड बैक होते हो। तो यदि आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो, बहुत लंबे समय से कर रहे हो, आप कितना होल्ड करते हैं? हम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, लेकिन कुछ जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वो मिनट तक होल्ड कर लेते हैं कोई भी आसन। तो उन उसके बीच में यदि आप उद्यान बंद, यानी कि पूरी की पूरी मसल्स जो है एब्डोमिनल रीजन की, आप खींच के अंदर ला सकते हो, तो वो मतलब इफेक्टिव होता है और ज्यादा, बस ये चीज है। जी ओके। कंपल्शन नहीं है, ये एक एडिशनल चीज है जो मैंने आपको बताई। ना नेक्स्ट आसन है, वैसे पश्चिम उत्तान के बाद में पूर्व उत्तान आसन जो है वो करते हैं, लेकिन वो अलग चीज है। अभी आप इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट आसन जो है वो सुप्त वज्रासन है। सुप्त वज्रासन मीन्स सुपाइन पोस्चर में ही ये है वैसे तो। लाइन, थंडर बोल्ट पोस्चर इसे बोलते हैं, वज्रासन को थंडर बोल्ट पोस्चर। वज्र की तरह, एक वज्र नाड़ी है जो आपके जो हेड से लेकर के नीचे आपके पेल्विक रीजन तक जाती है, तो उसको एक्टिवेट जो है वो करती है। तो सुप्त वज्रासन इज फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ वज्रासन, यू कैन से। एंड इट इज अ सुप्त बिकॉज यू हैव टू लाई डाउन while doing Vajrasan. So that's why it is called the Supta Vajrasan. So first you have to sit in Vajrasan, then slowly you have to bend backward, taking the support of your elbow, and place them on the ground first, and slowly straighten your hands and completely lie on your back with shoulders resting on the ground, and your knees remain together. Okay, no gap between the knees. And beginners may keep their hands on the respective thighs like this, or you can bend your elbows and place them uh, on your head, and then you have to lift your body after practicing this position well. Now make the shape of a pair of scissors with both hands, and then bring them under your shoulder, and your right hand will remain under the left shoulder, and left under the right, and head in the middle of them. So and you have to lift your back region up, chest up, abdominal up. So that way you will get a nice stretch, your whole abdominal region, your chest, your neck, all this will be muscles will have a very nice stretch, and also your spine become very much flexible. At the same time, your thigh muscles, and your calf muscles, they are under rest mode, but also they'll have a little stretch, or you can say little effect, because they are in a bend position. So this way, this is again a good asana for strengthening your abdominal muscles, and useful for high BPs, because here the blood flows, um, towards your head, towards your neck region, which is upside of your heart. So it is useful to regulate your blood pressure and sciatica also. But if the sciatica pain is too much, then you have to avoid this practice. And it is also
while doing this practice. So the blood circulation will also get improved. And also it is a very good practice for your backache, because your spine get relaxed and become more flexible. So that way you can relieve your back pain. You will have relaxation during your backache. So those suffering from some problems like gastric problem or pain in hips, so they should not do this practice, Supta Vajrasan. तो किस किस को कैसे आपको करना है सुप्त वज्रासन? वज्रासन आपको पता है, दोनों जो लेग्स हैं इसमें भी आपका जो फर्स्ट पोस्चर होगा वो सिटिंग दंडासन होगा। उसमें फिर आप एक लेग को बेंड करेंगे, जैसे लेफ्ट लेग को आप लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे, राइट हैंड लेग को आप राइट हील को राइट हिप के नीचे रखेंगे और अपनी बॉडी को सीधा रखेंगे, नेक एंड बैक स्ट्रेट रखेंगे, दोनों पाम्स आपके थाइस पे या फिर आप साइड में। तो ये आपका वज्रासन हो गया। अब आपको सुप्त वज्रासन करना है, तो इसी पोस्चर में आपको एल्बो के सपोर्ट से धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाना है, लिटाना है उसको, ठीक है। और जब आप पीछे की तरफ आ गए धीरे 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 धीरे, तो उसके बाद में एल्बो के सपोर्ट से आपको हेड अप करना है ना। हेड पे आपको पूरी बॉडी को रेस्ट करना है। तो जब आप हेड पे करेंगे तो आपका जो बीच वाली बॉडी है, जो आपका स्पाइनल रीजन है, जो आपका ट्रंक पोर्शन है, जो आपका एब्डोमेन चेस्ट है, वो ऊपर आ जाएगा। तो उस पूरे पोर्शन को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन, योर चेस्ट रीजन, हार्ट रीजन, नेक रीजन, हेड रीजन। तो इसमें जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो हेड की तरफ आता है। थोड़ा सा आप रिलैक्स जो है वो होती है मसल्स। यदि आपको बैक में कोई प्रॉब्लम है ना, बैक लोअर बैक में स्पेशली, तो वहां पर जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता है, क्योंकि अपर बॉडी स्ट्रेच हो रही है, फ्रंट वाली बॉडी, तो बैक साइड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, चेस्ट रीजन है, आपका हार्ट रीजन है, इसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। लंग्स ओपन अप होते हैं तो आपका जो है सर्कुलेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट आता है। और क्योंकि एब्डोमिनल रीजन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर, तो यदि कॉन्स्टिपेशन है या इस तरह से कोई डाइजेशन से रिलेटेड इशू है तो वो भी सॉल्व होता है इससे, और बैकएक में आपको आराम मिलता है। नेक्स्ट आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है ये भी बहुत इफेक्टिव आसन है। बहुत ज्यादा इसका वर्णन मिलता है आपको जो ग्रंथ हैं, टेक्स्ट हैं, उनमें मिलता है। क्योंकि ये आसन जो है वो किसने बनाया, किसका पोस्चर है ये, किस ऋषि ने बनाया, किस महर्षि? मत्स्येंद्रनाथ जो है वो क्यों इनका नाम हम लेते हैं, क्यों इनको इतना मानते हैं? उन्होंने उस आसन में बैठ के कुछ तो ऐसा कहा जाता है। हाँ, उसी आसन में बैठे थे वो, ऐसा कुछ है। बैठे थे, और यही गोरक्षनाथ के जो है वो कौन थे? गुरु थे, मत्स्येंद्रनाथ उनके गोरक्षनाथ के गुरु थे। हाँ, गुरु थे। तो वैसे तो नाथ परंपरा जो है कहा जाता है कि गोरक्षनाथ ने शुरू की, पर मत्स्येंद्रनाथ उनके भी गुरु थे, इसलिए बहुत रिस्पेक्ट से इनका नाम लेते हैं। तो और ये जो आसन है ये बहुत इफेक्टिव आसन है आपके एब्डोमेन के लिए। खासकर जो पैनक्रियाज है वो बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट होता है। आपका स्पाइन जो है वो अच्छी सी ट्विस्ट इसको मिलती है। So Ardha Matsyendrasan is
here it is half Matsyendrasana, half Matsyendra posture you can say. So this is named after the great yogi Matsyendranath, and the full version of this asana is very difficult, for a master also, for a good practitioner also, and for a beginner it is too difficult. So therefore it has been modified, and this modified version is Ardha Matsyendra asana, and you have to sit on the ground. First you have to sit in Dandasana, then you have to bend your left leg with the heel touching the side of your hip, and then you have to place your right foot near your left knee on the ground at the other side. Okay, now you have to place your left arm over your right knee, and you have to hold or grasp the toes of your right foot with your left hand, and take the right arm behind your back, your hips, and you have to turn your upper body, around the waist in an attempt, you touch the navel from behind. Like that, you have to twist your body and turn your head towards the right side and try to look behind as much as you can. Just twist your body. And same way, you have to repeat it on the opposite side using the opposite legs. So ये जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, इसको ही प्रैक्टिस जनरली करते हैं. बाकी जो पूरा मत्स्येंद्र आसन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अच्छे प्रैक्टिशनर के लिए भी. इट नीड्स मच डिवोशन एंड मच टाइम टू गेट मास्टर. उसका मास्टर बनने के लिए, उतने योग्य बनने के लिए तो जनरली अर्ध मत्स्येंद्र आसन कराया जाता है और करते हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे हैं. और ये ग्रेट योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पे है. ये एक आध बार क्वेश्चन आ गया था कि विच आसन, कौन सा आसन है जो कि योगी के नाम पे है. तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे. वैसे तो याद ही रहता है ये. और इसमें भी आपको पहले आप दंडासन में बैठेंगे, उसके बाद में आप एक लेग को आपको बेंड कर लेना है. जैसे कि आपने यदि लेफ्ट लेग को बेंड करा और उसको हील से टच कराया, अपोजिट हील से, ठीक है. लेफ्ट लेग है तो राइट हिप से टच करेगा, और जो आपका दूसरा फुट है, राइट फुट, वो जो है इस लेफ्ट नी के पास में आप रखेंगे. और उसके बाद में आपका जो लेफ्ट आर्म है ना, उसको आपको ऊपर से निकालना है, नी के क्रॉस करके, और राइट फुट का जो है वो टो पकड़ने की कोशिश करना है. यदि आप नहीं पकड़ सकते तो आप एंकल पकड़ सकते हो. एंकल भी नहीं पकड़ सकते तो आप वो नी को भी पकड़ सकते हो, और पूरी तरह से उसको अपनी बॉडी की तरफ ट्विस्ट करना है आपको, उस नी को या एंकल को या लेग को, सो दैट आपका जो अपर बॉडी है ये अपोजिट साइड में ट्विस्ट करे. जो दूसरा हाथ है आपका वो पीछे की तरफ जाएगा, या तो आप पीछे जमीन पे रख सकते हो अपने हिप्स पे, या फिर आप अपोजिट थाई पे रख सकते हो. राइट थाई पे आपको प्लेस करने की कोशिश आप करेंगे तो बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से ट्विस्ट होती है, टर्न होती है उस केस में. तो इस तरह से आपको ये आसन को परफॉर्म करना है. जितना हो सके उतना आपको होल्ड करना है, ठीक है. ब्रीदिंग आपकी कैसे होगी कि सेंटर में जब है तो आपने ब्रीद इन करा, और जब आपने ट्विस्ट किया तो थोड़ा सा ब्रीद आउट करते हुए पोस्चर में चले गए. फिर होल्ड करते समय नॉर्मल पोस्चर पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग आपने की. इसमें भी यदि आप अपने एब्डोमेन को टाइट रखेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे, तो आपको बेंड होने में, बॉडी को ट्विस्ट करने में, बॉडी को घुमाने में, है ना, टर्न करने में बहुत आसानी होती है उस केस में. और फिर आपने इसको होल्ड करना है थोड़ी देर, और वापस आ जाना है, और फिर रिपीट करना है दूसरे लेग के साथ में, दूसरे आर्म्स के साथ में, अपोजिटली. तो यही इसका काउंटर पोज हो जाता है. Now, what are the benefits? Now, this asana is beneficial for adrenal glands, kidney, liver, spleen, all your abdominal region. And it helps to, relieve constipation and, indigestion, obesity, and it strengthens the, muscles of your spine, because spine also get a nice stretch.
and back and makes them flexible. है ना? And your defective posture, na? Like your spine is slightly bent, your shoulders will be in, leaning forward. So this will give you a whole body a nice stretch, a nice look. All right. So posture wise, this asana helps to, this asana helps to improve your posture and stretches and strengthens your shoulder, hips, and neck also. And it is because it directly, this pancreas and your adrenal glands are compressed, or they are having a pressure or push, or some, um, you can say, a nice push or nice pressure will be on those glands. So it improves the secretion of hormone. So it is very good practice for the diabetic patients. So अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है आपको दिख रहा है कि ये एब्डोमिनल रीजन को भी अफेक्ट करता है आपके, और एब्डोमिनल में ही आपकी किडनी जो है, लिवर है, स्प्लीन है ना, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो यहाँ पर है, तो आपका इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, या इससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो वो इससे ठीक होंगे। ओबेसिटी है यदि है कमर के आसपास या पेट के आसपास जो है फैट बढ़ा हुआ है, तो उसकी ये जो ट्विस्टिंग है इसकी वजह से मसल का जो फैट है वो थोड़ा सा डिजॉल्व होने लग जाता है, वो मोर फ्लेक्सिबल बनती है, वहाँ पे जो भी डिपोजिशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और क्योंकि स्पाइन को भी एक स्ट्रेच मिल रहा है, तो और आपके शोल्डर्स भी उसमें जो है वो अलाइन होते हैं, तो कंधे जो हैं वो आपके सीधे, आपका स्पाइन सीधा, नेक आपका सीधा, तो आपका जो पोस्चर है पूरा बॉडी का, जो एक कहना चाहिए कि शरीर का जो संतुलन है वो प्रॉपर हो जाता है इससे। और क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड्स पे प्रेशर डालता है, पैनक्रियास पे, तो जो हार्मोन सिक्रीशन है वो इम्प्रूव होता है इससे। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस है आपकी वक्रासन। वक्रासन का, वक्र का क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा ट्विस्टिंग, यानी थोड़ा टेढ़ा हो जाना एक तरह से। तो ये भी आसन का बेनिफिट तो मोर और लेस अर्ध मत्स्येंद्र आसन जैसा है, पर ये कंपैरेटिवली इजी है, परफॉर्म कर सकते हो आप इसको थोड़े से चेंजेस के साथ में। So this Vakrasana is again a twisting portion. Vakra means twisting. All right. So in this asana, your spine is twisted, hence the name of this asana is given. It is again affect your spine, your lower abdominal region. And to perform this asana, you have to first sit on the ground with legs stretched beside the left knee. All right. And now keep the spine straight and twist the waist towards the right as much as you can. And bring the left arm towards the right side too, in such a way that the outer side of your left arm touches outer side of your right leg. And place this left hand beside your right foot. And you have to take your right arm back side. You can place your palm on the ground in such a way that the trunk, the trunk region or your spine should be erect. All right, with a proper twist. And after here, this palm is somewhat, at a distance from the hips, but you have to, try to keep this palm as close
to your hips as possible. Just a minute. नहीं आ रही अभी। मैम लेफ्ट हो गई। मैडम ने बोला ना अभी 1 मिनट रुको। All right, sorry for disturbance. आ रही है आपको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी ओके ओके ओके। हाँ, तो हम ये पढ़ रहे थे वक्रासन. तो यू हैव टू ट्राई टू कीप योर दिस palm as close as possible to your hips. So in that position, your upper body, your trunk region, your spine will be uh, stretched, erect properly. ठीक है. तो वक्र आसन भी जो है मोर और लेस थोड़ा सा वेरिएशन के साथ में है मत्स्येंद्र आसन के. तो इसमें भी दंडासन से ही शुरू करेंगे, है ना. एक लेग को आप राइट या लेफ्ट जो भी है, पहले हम जनरली राइट से शुरू करते हैं. तो राइट लेग को आप थोड़ा सा बेंड करेंगे सो दैट आपका जो राइट नी है ये सीलिंग को फेस करे, और ये जो पैर है आपका, जो फुट है या टोज है, ये लेफ्ट नी के पास में आप रखेंगे. और अपोजिट आर्म से यानी कि लेफ्ट आर्म से आपको नी को क्रॉस करते हुए जो है कोशिश करनी है कि आप लेफ्ट टो को पकड़ लो या राइट टो को पकड़ लो लेफ्ट आर्म से. और जो आपका राइट आर्म है ये बैक साइड में जाएगा. तो आपको बॉडी को ट्विस्ट करते जाना है और अपने हाथों को, जो राइट आर्म है, जो राइट सीधे हाथ की जो हथेली है वो पीछे की तरफ आपको रखनी है. हिप्स के सेंटर में जनरली ट्राई करते हैं कि रखें, और हिप्स से जितना पास हो उतना अच्छा है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो पीछे की तरफ बेंड ना हो, सीधी रहे. ठीक है. और यदि आप नहीं कर सकते या आपका कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है, तो उसको या तो आप एंकल को होल्ड करने के लिए बोल सकते हो, शिन बोन को, ये जो लेग है इसको होल्ड करे, या फिर नी को होल्ड करने के लिए. नी को हर कोई होल्ड कर सकता है, तो वो होल्ड करे और पुश करे, डाउन करने की कोशिश करे, और अपने बॉडी को, अपर बॉडी को जितना ट्विस्ट कर सकता है, पीछे की तरफ ले जा सकता है ले जाए. और अपनी जो हेड रीजन है उसको भी आपको पीछे की तरफ ले जाना है, सो दैट योर हेड रीजन, योर चिन शुड अलाइन विथ योर शोल्डर. ठीक है. तो ये जो चीज है, ये जो आपका चिन है, ये शोल्डर के अलाइन हो. तो इस तरह से जितना पीछे हो सके उतना पीछे ले जाकर देखने की कोशिश करनी है, पीछे की तरफ. Now, what are the benefits? This asana makes the spinal bone flexible, tone up your spine nerves. तो वही सारे benefits है. Benefits are same as more or less as Matsyendrasana आसन. Also, it is helpful to in case of constipation, indigestion, and it stimulates the pancreas and it's useful for diabetes patients.
and also because your chest region is having perfect opening, so that way it improves the capacity of your lungs की capacity भी जो है वो इससे बढ़ती है. फिर आता है आपका बद्धकोण आसन. बद्धकोण आसन का दूसरा नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है कि आपको. इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं एक्चुअली. In some variation your heel should be below your head. तितली आसन है ना मैम? तितली बोल रहा, सॉरी. हाँ, बटरफ्लाई पोस्चर, भद्रासन भी बोलते हैं. तो अलग अलग वेरिएशंस हैं. यहाँ पर बद्धकोणासन ऐसे बताया है. तो इसमें भी आपको क्या करना है कि you have to sit on the ground with your legs stretched straight in front. Then you have to fold your legs at your knees and bring the soles of the feet together. All right, and then you have to you can place your either you can hold your toes, or you can place your both palms on your knees, and you have to hold this posture, keeping your spine straight, neck straight, chest open. All right, and your abdominal region perfectly stretched, your trunk portion stretched out. So this way, if your neck and spine is erect, so you have to maintain this position for as long as you feel comfortable with normal breathing, and come back to your original position. And if you want, you can move your both legs, keeping doing lifting your knees up and down, up and down. So your whole pelvic region muscles will get open up, because these muscles are not much used in our daily routine. So if you sit like this, you will have a nice stretch in the muscles near your hips, muscle. Rectal disorder, piles also may be managed by practicing this asana, and it is highly effective for lessening for rigidity of the joints of your knees, ankle, and pelvic region. So it also improves the balancing. Actually, in this position, when you hold, you have to keep your eyes at one point. All right, you have to focus, and you have to stare at one point and hold that posture with normal breathing. So it improves, your concentration, your balance. तो ये जो बद्धकोण आसन है, ये तितली आसन की तरह है. और इसमें इसके वेरिएशंस भी हैं. यहाँ पे एक सिंपल वेरिएशन है, तो पर इफेक्टिव है ये जो आसन है. इस पोस्चर, ये जो पोस्चर है बद्धकोणासन का, ये भी बहुत इफेक्टिव है. आपको अपने दोनों लेग्स को खोलना है, फिर उसको दोनों लेग्स को आपको बेंड करना है. इस तरह से बेंड करना है कि जो दोनों सोल है, जो दोनों पैर हैं, वो साथ में आ जाए. दोनों को ज्वाइन करना है. और ये जो हील है, उसको एज पॉसिबल एज आप अपने जो पेल्विक रीजन है उसकी तरफ आपको उसको खींचना है. तो इससे एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है. आपकी जो पूरी बॉडी है, जो आपका स्पाइन है, चेस्ट है, नेक है, ये सीधा होना चाहिए. इसमें आप चाहें तो दोनों जो पैर हैं उसको होल्ड कर सकते हो अपने पाम से, या फिर दोनों पाम कोई मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में अपने नीज पे भी रख सकते हो. कोशिश करनी है कि जो आपके नीज हैं ये ग्राउंड की तरफ आपको उसको पुश करना है. ठीक है, ताकि आपके जो नीज हैं ये ग्राउंड से लग जाए. ऐसी कोशिश जो है इस आसन में करनी है. तो इस आसन में आप देख रहे हो कि चेस्ट ओपन है आपका, बैक स्ट्रेट है आपका, नेक स्ट्रेट है ना. एब्डोमेन पे खिंचाव है, लोअर एब्डोमेन पे खासकर. और आपका जो पेल्विक मसल्स हैं, पेल्विक जॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छा सा ओपनिंग मिलती है. और इनर थाई मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच जो है वो इससे मिलता है. वो स्ट्रांग होती हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं. तो इस तरह से
फाइल्स में भी कहते हैं कि यदि आप ये आसन जो है, यदि आपको हल्का कभी कभार ये तकलीफ होती है और ये आप आसन करते हो तो आपको बहुत आराम मिलता है। ठीक है, और जो आपके नी जॉइंट्स हैं, पेल्विक जॉइंट्स है, इसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है। और इस आसन में जनरली आईज ओपन करके यू हैव टू स्टेयर एट, एक पॉइंट पे आपको देखना होता है, एक पॉइंट पे फोकस करते हैं आप, तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है, बैलेंस जो है आपकी बॉडी का वो बढ़ता है। 2-3 आसन बचते हैं, तो ये हम अब कल कर लेंगे विथ प्रोन पोस्चर आसन। ठीक है, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा काफी। अब देखिए ये भी एक जो है वो मेरुदंड आसन है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, या कर लेते हैं, चलिए इसको कर ही लेते हैं। मेरुदंड आसन के भी बहुत सारे वेरिएशन हैं, जो दोनों लेग्स यहाँ पर जो है अप साइड हैं, उसको जमीन पे रख के भी करते हैं, इसको ट्विस्टिंग के साथ में भी करते हैं, इसको होल्ड के साथ में भी करते हैं। तो यहाँ पर वन ऑफ द वेरिएशन है कि you have to first sit in दंडासन, then you have to spread your legs as much as you can, और उसके बाद में आप उसको ऐसे तो ऊपर नहीं उठते हैं, तो आप क्लोज करके दोनों लेग्स को, then you have to hold your toes and then you have to raise your both legs up while holding your toes with your फिंगर से होल्ड करके आप धीरे धीरे उसको ऊपर उठाएंगे और स्प्रेड करेंगे, उसको डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे जितना कि आप कर सकते हैं, और फिर उसको होल्ड करेंगे पोस्चर को। तो इसमें भी जो आपके आर्म्स हैं, शोल्डर्स हैं, उसकी मसल्स हैं, आपके लेग की मसल्स हैं, पेल्विक रीजन है, वो इस पे अफेक्ट होगा इससे। तो वही सारे मोर और लेस सेम आपको बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। चाहे तो आप दोनों लेग्स को नीचे रख करके मैट पे और स्प्रेड करके और हाथों से अपने टोस को होल्ड कर सकते हो, अब करके भी कर सकते हो, और अपोजिट हैंड से जो है, जैसे कि राइट टो है तो आपको लेफ्ट हैंड के फिंगर से आप उसको टच कर सकते हो दोनों तरफ, साइड बाय साइड विथ अपोजिट हैंड से। तो इससे थोड़ी सी ट्विस्टिंग भी हो जाती है, आपका जो पेल्विक है, स्पाइन है, इसको ट्विस्ट मिलता है, लेकिन आपके जो लेग मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग मिलती है, साथ साथ में आपके आर्म्स और शोल्डर को भी मसल्स को भी एक ट्विस्टिंग और एक स्ट्रेंथनिंग मिलती है। आकर्ण धनुरासन जो है वो 2 तरह से यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। Now here in this asan you have to both legs stretched in front straight, and then you have to hold your left toe with your left palm, and with the help of your right right hand fingers, you have to hold your right toe and keep your legs up, push your legs up and try to keep your foot near your right ear. तो इसलिए इसको बोला है, that's why it is called Akarna Dhanur Asana. It's a posture like you are stretching a bow. So that way this asana is named, and it is the whole muscles of your legs, your pelvic and your arms and your shoulders, they will be affected by doing this type of asana. One of the variation is like this: you have to hold the opposite toe, right, with your right toe with your left hand fingers, and then hold the right toe with your left hand fingers, uh, likewise oppositely, and then you have to push your opposite toe towards your opposite ear, right? Here the same ear, same leg, same hand, here opposite. All right, if it is a left leg, then right hand here, and you have to up raise your left leg up with your right hand fingers and push your left toe towards your
right ear. So this is again not a very easy practice. If you do it regularly, then you are able to hold your leg upside, and you have to push towards your body, the opposite leg. And then Gomukhasana. I think this one is the last asana. Okay. So this is Gomukhasana. Here you see the posture of your body is like a cow face. It is known as the cow face posture. And the position of your legs will be like this. The position of your leg becomes, this shows the face of cow. Therefore, it is Gomukhasana. Now, here also you have to first sit in Dandasana, then you have to, position your one leg. If it is your right leg, you have to bend, then right heel touches your left hip, and then you have to place your right leg over your left leg, so that the knee will be, both knees will be aligned together. Okay, and similarly, you have to like raise your, if your right arm, sorry, if your right leg is at upper position and left leg is at the down position, then you have to like raise your that arm, right arm upside, then right leg up, then you have to raise your right leg, right arm up, and then you have to bend your left elbow, left arm, and then hold the fingers together at the back side. All right. Raise your right arm and bend it at the elbow and take it, upward. And you have to behind your back and interlock the fingers of both the hands behind at the back side of uh, your body, and try to extend the head backward and against your elbow as much as possible, and open up your chest completely, and flatten up your abdominal region, and again gaze at in front at any point. Now you have to stay in this position as long as you feel comfortable, and then return to your original position and repeat the same by changing the position of your legs and hands. तो गोमुख आसन में भी आपको किस तरह से करना है कि आप पहले दंडासन में बैठे, एक लेग को, आपको किसी भी एक लेग को, जैसे आपने लेफ्ट लेग को बेंड किया है, तो इट टचेस, द हील टचेस योर हिप्स, अपोजिट हिप, एंड उसके बाद में आप राइट को बेंड करके उधर लेके जाइए। और यदि राइट हैंड, राइट लेग आपका ऊपर है, तो राइट हैंड को आपको ऊपर से लेके जाना है, और कोशिश करना है कि आपका जो चेस्ट रीजन है, जो ये शोल्डर है, ये अच्छी तरह से स्ट्रेच आउट होंगे, तब जाकर के आप जो दोनों हैंड के जो फिंगर है उसको लॉक कर पाओगे। और उसको फिर आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करना है, और एब्डोमेन रीजन जो है उसको फ्लैट करने की कोशिश करना है। तो इस तरह से आपको होल्ड करना है थोड़ी देर ये पोस्चर, और उसके एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टेयर एट वन पॉइंट ना, एक पॉइंट पे आपको देखना है थोड़ी देर तक, जब तक कि आप ये पोस्चर होल्ड कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद में यू हैव टू कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन, पहले की जो पोजीशन थी उसमें आ जाइए, और फिर रिपीट करिए दूसरे जो है लेग्स के साथ में। यदि आपने पहले राइट लेग को फोल्ड किया था, तो अब राइट लेग को फोल्ड करिए पहले, और लेफ्ट लेग को ऊपर रखिए। इन दोनों जो लेग्स की या जो नीज की पोजीशन है वो काऊ के मुख की तरह दिखती है, इसलिए इसको गौमुख आसन जो है वो बोला गया है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये भी आसन जो है वो बहुत यूजफुल है। इट स्ट्रेंथन्स द मसल ऑफ योर बैक एंड बाइसेप्स and removes the pain in hips and your lower extremities, and it also helps in making the spine straight, and this asana is very useful in arthritis, joint pain, dry piles,
because it affects reproductive, your digestive system. It is, also useful in frozen shoulders, neck pain, and, cervical spondylitis related to your, shoulder region. And it gives a good exercise to your lungs, and it helps also because lungs are affected. So it helps in to cure respiratory diseases. All right. So this is all for today. We have completed all sitting postures with a slight disturbance. Okay. So that's all for today.